Only 11 students are there online. Okay. So we have started with the insurance. There are. Huh. See, we have started with the insurance here, and in insurance first chapter we have started, that is life insurance. Okay. So life insurance में देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है. In that one we have seen the introduction of insurance. Then we have seen the introduction of life insurance. Yes, from which class? IDSC, ID. Which is ID? 707. See, we have seen the introduction of insurance, then introduction of life insurance, then the definition, and then we have seen life insurance as a business concept. Okay. Now we have to see the nature of life insurance and which are all the principles of life insurance. Essential features of life insurance. So when we say about the nature of life insurance, it is in short, what exactly the insurance means, life insurance. Okay. So the first one here, the peculiar nature of life insurance is that the contracted event is bound to happen and the insurer has to perform the contract. Okay. So here what exactly जो लाइफ इंश्योरेंस रहता है इट इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली. सो जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है एक एक टाइप का वो बॉन्ड रहता है कि जो भी वहां पे लिखा गया है दैट मैंडेटरी यू हैव टू एक्सेप्ट एज अ इंश्योरर आल्सो. ठीक है. और हम जो इंश्योरेंस ले रहे हैं उनको भी वो एक्सेप्ट करना पड़ता है. देन लाइफ इंश्योरेंस कवर डेट ड्यू टू नेचुरल कॉजेस एज वेल एज ड्यू टू एक्सीडेंट. एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट.
है ना? ओके, सॉरी स्टूडेंट, बस थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था देखो. ओके, चलो, वी हैव टू स्टार्ट विद द नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. So first we have started like the whatever they are deciding in that policy. So it's a kind of a contract, or we can say it's a kind of a bond. Okay. Then life insurance cover death due to natural causes as well as due to accident. Everybody knows like when we say about the life insurance, so it will be covering your accidental death also and the natural death also. Then life insurance contract is a long-term contract having all essential features of a valid contract. Generally, जब life insurance बनता है, so it is not like only for a 6 month or 1 month or only for a 1 year it will going to happen. It will be for a long-term contract only. So जैसे कि 15 साल 20 साल के लिए. Then life insurance is a contract of assurance and indemnity which life cannot be indemnified. Therefore, subrogation and contribution does not apply to life insurance here. So what they are trying to say here, it's a contract of assurance and indemnity. Indemnity मतलब वहाँ पे अगर death होता है तो वहाँ like whatever loss you are facing, तो पूरा loss को वो लोग recover करके देंगे. So that kind of a guarantee they are giving you. Okay, so this is what the life insurance. दे मतलब ऐसे नहीं कि वो आदमी का वैल्यू कितना है, दैट वी कैन नॉट से, लेकिन जो लॉस हुआ है वो कुछ हद तक वो कवर अप करके देगा. दिस इज व्हाट द मीनिंग हियर. देन a warranty in a life insurance policy is not collateral but basis to the contract. Is not collateral मतलब ऐसे नहीं कि मुझे ये चाहिए आपको यही देना पड़ेगा, वैसे नहीं होता है. ओके, वॉट एवर इज बिंग डिसाइडेड बाय द लाइफ इंश्योरेंस, वो इंस्टीट्यूट का जो भी पॉलिसी जो भी उन्होंने डिसाइड किया कि इन व्हाट वे इन व्हाट कंडीशन दे विल गोइंग टू पे द मनी, इफ वी आर एग्री विद दैट देन ओनली वी आर परचेसिंग द पॉलिसी. तो ऐसे नहीं कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं करके मुझे ये चेंजेस करके, तो ऐसे नहीं होता है. ओके, देन लाइफ इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द assured where he gets the compounded value of premium upon survival. Okay, so again what we can say is a kind of a investment we are doing. कि मतलब कुछ loss होता है, it's not only about the loss only, but after a certain period of a time, some like till that particular year, till that maturity, our life will also going to get the secure, and उसके बाद में हमें पैसा भी मिलता है. So therefore we are saying it's a kind of an investment. Now this essential features of life insurance है, ये ज्यादा important है because they are the objective will going to come on this type, this kind of a question. Okay, कि कौन से प्रिंसिपल्स है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्यों कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट लाइफ इंश्योरेंस को. दिस वे द एमसीक्यू विल गोइंग टू कम. सी एसेंशियल फीचर्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस. सो द फर्स्ट फीचर क्या है लाइफ इंश्योरेंस का, एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू व्हाट एग्जैक्टली द लाइफ इंश्योरेंस इज. ठीक है, मैंने सबको कहा है कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, क्या प्रीमियम होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्यों लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस करना चाहिए. दैट एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. अभी आप लोग मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन बोलते जाओगे. यहाँ पे उन्होंने फीचर्स में बताया है कि इट्स एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कैन एनीवन टेल मी हियर व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट. इसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा गया है, बोलो. एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्यों कॉन्ट्रैक्ट कहा गया, क्या लगता है आप लोगों को. एवरीबडी कैन गिव मी आंसर, इवन द ऑनलाइन स्टूडेंट. हाँ, यस, इट इज बेस्ड ऑन डीलिंग. कोई अगर वहां पे बोल रहा है तो वो भी साउंड होता. हाँ, इट इज बेस्ड ऑन डीलिंग. विच वन. ओके, हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं. वेरी गुड. जैसे मैंने कहा कि हमारे अकॉर्डिंग मतलब मुझे ये पसंद नहीं है करके मुझे वो चाहिए, वैसे नहीं हो सकता है. ओके, वॉट एवर रूल्स एंड रेगुलेशन इज बी रिटन ओवर देयर, if we are convinced with those kind of rules and regulation, then only we are purchasing it. So therefore they are saying it's a contract. और वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि तुम्हारा ये अगर प्रॉब्लम रहेगा तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, ये सिचुएशन पे इतना पैसा मिलता है. सो दैट वी दे आर गिविंग यू द कॉन्ट्रैक्ट आल्सो. ठीक है, तो वहां पे वो डिटेलिंग लिखा जाता है और इसके लिए उसको कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है कि उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें जो भी एडवांटेज मिलेगा, that will be according to that contract only. Okay, so it's a legal what we can say legal document we are saying. ऐसे नहीं जस्ट वर्बली बोल दिया या फिर किसी ने लिख के दे दिया, वैसे नहीं रहता है. अगर एलआईसी तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो नहीं दे पाता है तो तुम लोग उनके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकते हो. एंड ऑन व्हाट बेसिस यू विल गोइंग टू गिव द लीगल एक्शन, बिकॉज व्हाटएवर कॉन्ट्रैक्ट व्हाटएवर पॉलिसी में जो भी लिखा हुआ है, it is as per that you will like you have authority to say that कि यहाँ पे जो rules and regulation है
इसके अंदर ये लिखा हुआ है, बट व्हेन आई पर्सनली वेंट एंड आस्क्ड देम फॉर दैट काइंड ऑफ एडवांटेज देन दे आर नॉट प्रोवाइडिंग, तो वो तुम्हारे लिए वो लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ओके, चलो यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या रहेगा, किसका इंटरेस्ट है और क्यों एक इंश्योरर या फिर जो हम लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट इसमें क्या है, बताओ मुझे। Why we will going to have the insurable interest? बोलो क्या लगता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब ये किसका किसका अथॉरिटी रहेगा, यहाँ पे कौन इंश्योर करके देने वाला है हम लोगों को, कौन इंश्योर करके दे रहा है हमारे लाइफ को, कौन इंश्योर कर रहा है? LIC है ना, LIC इंश्योर कर, लाइफ इंश्योरेंस। LIC नहीं बोल सकते हम लोग, लाइफ इंश्योरेंस बोल सकते हैं, बिकॉज LIC बहुत सारे लोग देते हैं। ठीक है, सो लाइक जो अपना इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन है, दे आर एक्चुअली गिविंग अस द इंश्योर्ड इंटरेस्ट। ठीक है, वो हमें बताते हैं कि ठीक है वी आर इंटरेस्ट टू इंश्योर योर लाइफ। जैसे मैंने कहा कि अगर हमें ऑलरेडी बीमारी है और तब हम लोग जब जाते हैं ना उनसे डिमांड करते हैं कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है। प्रॉब्लमेटिक इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो रिजेक्ट करते हैं, लेकिन वहां पे उनको पता है कि ये आदमी कभी ना कभी एडवांटेज लेने वाला ही है। हाँ, हाँ, पूरा पूरा चेकिंग होता है। अगर वहां पे मेडिकली हम लोग कुछ जा रहे हैं तो वो मेडिकल के लिए भी पहले चेक करके, जैसे कि क्या रहता है कि मेडिकल इंश्योरेंस के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या रहता है कि हम लोग जब लेते हैं ना उस टाइम पे वो लोग पूरा डिटेल लेते हैं कि इनको कैंसर वगैरह है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, जैसे उसने कहा कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह है क्या। हाँ, वो सब सब डिटेल, यस, सब उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चार्जेस रहते हैं। अगर उनको लगता है कि जैसे कैंसर है, तो अगर पूछने जाएंगे कि नहीं मुझे उसके अकॉर्डिंग कुछ चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर हम लोगों ने वहाँ पे डिटेक्ट हो गया कि ऑलरेडी कैंसर है और ये बंदा एडवांटेज लेने ही वाला है, तो वहाँ पे उनके चार्जेस ज्यादा रहते हैं। हाँ, तभी ज्यादा रहते हैं। लेकिन कुछ नहीं, ये सब ठीक है। और उस टाइम पे नॉर्मल चार्जेस रहेंगे, और लेकिन नॉर्मल चार्जेस के बाद में भी इमिडिएटली तुम लोगों ने स्कीम निकाल लिया और 1 महीने के बाद में कैंसर डिटेक्ट हुआ तभी एडवांटेज लेना है, वैसे नहीं होता है। ठीक है, उनका भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है कि 6 महीने तक कौन सा बीमारी जो स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के 6 महीने में कौन सा बीमारी को वो लोग कवर अप करेंगे। तो कभी कभार क्या रहता है कि इवन जब हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं और जो 1000 रुपया 500 रुपया जो फी देते हैं, इवन वो भी कोई कोई मेडिकल क्लेम मतलब कवर अप कर लेता है। सो इट्स ऑल डिपेंड कि क्या सिचुएशन है करके। एंड वन मोर थिंग कि जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो जो लोग ट्रैवलिंग में ज्यादा करके बाइक और कार को यूज करते हैं, तो उनके लिए वो पूछा जाता है कि ट्रैवलिंग कैसे होता है क्या होता है करके। सो वहां पे उन बेसिस के ऊपर उनको सजेस्ट भी किया जाता है यू शुड गो फॉर द एक्सीडेंटल डेथ, ऐसा करके वो इंश्योरेंस आप लोग निकालो। ओके, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब जो कंपनी तुम्हें दे रही है इंश्योरेंस, उनको तुम्हारे लाइफ में इंटरेस्ट होना चाहिए तुम्हें इंश्योर करने के लिए। ओके, दिस इज व्हाट द मीनिंग हियर। So insurable interest in own life, then insurable interest in others life also. Now the next feature here, utmost good faith. गुड फेथ मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में अच्छा फेथ होना चाहिए। जैसे कि एक इंश्योरर है और एक अपना जो इंश्योर हाँ ले दे रहा है, उनके बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में फेथ होना चाहिए कि उनको गारंटी होना चाहिए अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये कंपनी मुझे पैसा देने ही वाला है। ठीक है, और जो सामने वाला रहेगा जैसे कि इंस्टीट्यूशन रहेगा, तो उनको भी गारंटी होना चाहिए कि इसको अगर मैं इसके लाइफ को इंश्योर कर रहा हूँ, तो वट एवर प्रीमियम ही इज एक्सपेक्टिंग, तो वो प्रीमियम इसे पे करना चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ फेथ शुड बी देयर इन दिस बोथ द पार्टी। ओके, ये होता है मीनिंग ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट वन हियर, वारंटीज। अच्छा, अभी मुझे बताओ वारंटीज में आप लोग क्या बोलोगे यहाँ पे, वारंटीज इन द कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्जैक्टली क्या रहेगा, वारंटी मतलब क्या रहता है बताओ। हाँ मतलब, हाँ ठीक है, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वारंटी मतलब क्या है। हाँ, वो वारंटी हम लोग, अब जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंपनी ने देना चाहिए, लेकिन कंपनी के लिए हम लोग क्या वारंटी देंगे, हमारे तरफ से क्या होना चाहिए बराबर, ताकि वो हमें पैसा दे जब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो। क्या लगता है, वो तो ठीक है हमारी तरफ से, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मेरे लाइफ में कुछ हो जाता है तो वो कंपनी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो मैंने बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके अकॉर्डिंग उसे पैसा देना चाहिए, दैट इज ट्रू। लेकिन हम लोग क्या उनको वारंटी दे सकते हैं,
हमारे तरफ से हम लोग को कहाँ पे मिस्टेक नहीं करना चाहिए, दैट विल बी ऑन पेइंग द प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम मतलब पैसा हम लोग जो टाइम दिया है ना वो टाइम पे देना चाहिए, उतना हम लोगों को वारंटी वहां पे देना चाहिए। और वो वारंटी के लिए पूछते हैं कि मतलब तुम लोग कहाँ पे काम करते हो, क्या सैलरी करके, दैट डिटेलिंग आल्सो दे आर टेकिंग व्हेन यू आर परचेसिंग एनी ऑफ द पॉलिसी। तो वो एक उनके लिए वारंटी के जैसा काम करता है। नेक्स्ट वन हियर, असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन। सी असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन में क्या, अभी सबको पता है कि नॉमिनेशन मतलब क्या रहता है, क्या रहता है नॉमिनेशन मतलब, नॉमिनी रखना। ठीक है, मतलब नॉमिनी मतलब क्या, कि अगर मेरे बाद में जो भी एडवांटेज रहेगा इस स्कीम का वो किसको देना है, सो दैट काइंड ऑफ अ नॉमिनेशन वी हैव टू गिव हियर। एंड असाइनमेंट में क्या रहता है, द राइट्स आर ट्रांसफर टू द असाइनी फॉर सम लीगल कंसिडरेशन और लव एंड अफेक्शन। मतलब क्या होता है कि असाइनी मतलब हाउ आई एम गोइंग टू से, कि जैसे मतलब मेरे डेथ के बाद में मैंने वहां पे नॉमिनी करके मेरे बच्चे को रखा हुआ है। ठीक है, इफ माय सन इज देयर, तो वहां पे उसको वो एडवांटेज नहीं चाहिए, उसको लगता है कि ये पॉलिसी फिर से रिन्यू होके मुझे वो पॉलिसी मिल जाए करके। तो वैसे भी वो LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कर सकता है। लाइफ इंश्योरेंस में हम लोग वैसे भी कर सकते हैं कि वही इंश्योरेंस स्कीम किसी और को भी हम लोग मतलब अपने लिए जो नॉमिनी है उनको अगर वो कंटिन्यू रखना है खुद के लिए, तो वैसे वो राइट जो मुझे राइट है वो मेरे बच्चे को भी राइट जा सकता है। ओके, सो दिस इज व्हाट द असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन। देन प्रीमियम, सबको पता है प्रीमियम क्या होता है। हाँ यस, मेरे बाद में उसके बेटे को वैसे रहेगा, प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो यहाँ माइनर माइनर भी कर रख सकते हैं हम लोग, लेकिन उसका इतना वैल्यू नहीं रहता है, तो वो लोग प्रीफर करते हैं कि नहीं माइनर मत रखो, जो मतलब अडल्ट है थोड़ा उनको ही रखो करके। लेकिन माइनर को भी दे सकते हैं, एज नॉमिनी कर सकते हैं। देन प्रीमियम, सबको पता है प्रीमियम क्या होता है करके, कि जो हम लोग पॉलिसी लेते हैं तो उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है। सो पैसा देने का भी अलग अलग वे रहता है। यू कैन पे मंथली, यू कैन पे क्वार्टरली 3 महीने के बाद में, यू कैन पे हाफ ईयरली, और यू कैन गिव द एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑल्सो। Then certainty of event. See, in life insurance policy, the insurer has to pay the insured amount at the time of death of the insured or at maturity which is certain. Certainty of event मतलब कि अगर कुछ जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ये सिचुएशन हो जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा, तो वो इवेंट पे बराबर वैसा होने के बाद में बराबर उन्होंने पैसा देना चाहिए। सर्टेनिटी मतलब बोलते हैं ना हम लोग की फिक्स होना चाहिए, वहां पे कुछ अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए कि यार ये देगा या नहीं देगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। इफ इट हैज बीन रिटर्न, तो जो एजेंट के थ्रू तुम लोगों ने वो पॉलिसी लिया हुआ है या फिर डायरेक्ट कंपनी के पास जाके भी आप वो डिमांड कर सकते हैं। ओके, लेकिन एजेंट रहेगा तो आपके फैमिली के साथ जिसको नॉमिनी रखा हुआ है वो एजेंट का नंबर उसके पास हमेशा देके रखेगा नॉमिनी को, सो दैट उसको प्रॉब्लम नहीं रहेगा जब वो क्लेम करना चाहेगा उस टाइम पे। एंड देन द नेक्स्ट वन ईयर की हाँ मैच्योरिटी, अगर कोई मतलब कोई कोई पॉलिसी रहता है कि जो इवेंट के अकॉर्डिंग रहता है और कोई कोई मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग रहता है, तो जैसे मैच्योरिटी होगा उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। ओके, सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, या कुछ नहीं समझा आप लोगों को? यस, ऑल ऑफ यू ऑनलाइन स्टूडेंट, nobody is unmuting. Yes, ma'am. Okay, okay, ठीक है चलो। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, एडवांटेजेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, yes, the first advantage of life insurance is encourages and aids thrift. See, insurance allows long-term savings since the premiums are paid in easy installment, that is monthly, quarterly, half yearly or yearly. In case of other type of saving, there is a greater attraction to withdraw money from the saving accumulation. The purpose for which the saving account is opened is seldom fulfilled for that reason. देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम लोग सेविंग करते हैं, भले हम लोग FD करें या RD करें, लेकिन क्या होता है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगा या फिर लगता है कि नहीं अभी मुझे ये कुछ खरीदना है, तो हम लोग वो इवन FD RD को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर जो हमारा ऑब्जेक्टिव था सेविंग करने का, वो ऑब्जेक्टिव अपना कहीं पे हट जाता है। आर यू गेटिंग मी? लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, वैसे नहीं हो सकता। लाइफ इंश्योरेंस में वंस यू हैव डिसाइडेड, देन यू हैव टू डू दैट सेविंग, पूरा वो सेविंग करते रहेगा। आप लोग बीच में उसको नहीं बंद कर सकते हो, बीच में बंद कर दिया तो वो आपको लॉस ही रहेगा।
you will not going to get the benefit. Okay, जिसके लिए उन्होंने कहा कि encourages and aids it, मतलब जो तुम लोग का सेविंग का ऑब्जेक्टिव है that can be fully satisfied with the life insurance. This is the first advantage. Then the protection. Protection में क्या लिखा है? It is again the life insurance policy offer full protection against the risks of death, unlike the other saving plan. In the event of death, the life insurance assure full sum compared to the other saving plan where the amount saved with the interest is only payable. देखो अगर हमारे पास पैसा है और हम लोग उसका एफडी आरडी बना के रखते हैं, लेकिन उसका कुछ भी गारंटी नहीं रहता है कि आपके डेथ के बाद में आपको कुछ वहां पे ज्यादा पैसा मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, दैट कैन ऑफ इवन वो सिक्योरिटी भी देते नहीं है। ठीक है, मैच्योरिटी खत्म हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट ले लो, जितना पैसा आपने डिपॉजिट किया उतना ले लो करके। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है, एक तो तुम्हारे लाइफ को वो सिक्योर भी रखता है, आपको पता रहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो अमाउंट आने वाला है। भले आप लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि आपने एक प्रीमियम भरा है और उसके बाद में कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आपको उससे बहुत ज्यादा मल्टीपल्स में पैसा मिलेगा। Are you getting me? So this kind of a protection and what we can say, the maximum amount you can get through the life insurance scheme. Then the accidental death benefit. Many policies can also provide for an entire sum to be paid equal to the sum assured if death occurs as a result of accident. Equal to the sum assured मतलब क्या रहता है कि जो अमाउंट डिसाइड रहता है कि इतना अमाउंट मिलेगा। तो कोई कोई पॉलिसीज में भी अलग अलग रहता है। कोई भी पॉलिसी क्या कहता है कि प्रीमियम आपने कितना भरा है अभी तक, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है, तो उस टाइम तक आपने कितना प्रीमियम भरा था, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आपको उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देके आपको पैसा दे देंगे। लेकिन जनरली कुछ पॉलिसी ऐसा रहता है कि जो ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है कि आपका प्रीमियम भर के हो या ना हो, हाँ, लेकिन इतना पर्टिकुलर अमाउंट है, आपको वो अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। Okay, so this kind of a benefit, accidental death benefit we are getting, and life insurance में जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैक्सिमम बेनिफिट एक्सीडेंटल डेथ में रहता है। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, टैक्स बेनिफिट। इसका मतलब ये नहीं खुद से एक्सीडेंट करवा के लेने का, वो लोग देखते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन है टैक्स बेनिफिट। A tax relief is available for amounts paid by way of premium for life insurance subject to income tax rates in force. जैसे तुम लोग को पता रहेगा कि इनकम टैक्स, पता है ना इनकम टैक्स क्या रहता है करके। अभी का बताओ कितना लेवल है, कितना अमाउंट से ज्यादा सैलरी रहेगा तो इनकम टैक्स लगता है? नहीं। 2 लाख वॉज द प्रीवियस वन, पहले ऐसा था कि पहले 2 लाख का था, उसके बाद में 3.5 लाख का हुआ, और अभी रिसेंटली जो बजट हुआ उसके अंदर 5 लाख का उन्होंने कहा। ठीक है, तो 5 लाख के आगे अगर इनकम है आप लोगों का तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं वो मेरा टैक्स नहीं कट होना चाहिए, मुझे कुछ गवर्नमेंट को पैसा देना नहीं है, मुझे जो मेरा पैसा है वो मुझे चाहिए, तो इसके लिए आप क्या दिखा सकते हो? एक तो आप पीपीएफ, अगर मतलब सी यू आर 18 अबव, ओके, तो पॉसिबल रहेगा तो अपना पीपीएफ अकाउंट में निकाल के रखो। पीपीएफ मतलब पर्सनल प्रोविडेंट फंड। एक पीएफ रहता है कि जो तुम्हारा सैलरी में से निकलता है, और एक रहता है पीपीएफ की तुम लोग जॉब पे हो या ना हो, लेकिन फिर भी तुम लोग पीपीएफ निकाल सकते हो, अपना प्रोविडेंट फंड निकाल सकते हो। लेकिन पीपीएफ में क्या रहता है, 15 ईयर्स का वो लॉक पीरियड रहता है, उसके इन बिटवीन कुछ सर्टेन परसेंटेज का होगा तो निकाल सकते तुम लोग पैसा, लेकिन पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। एंड वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके फैमिली में भी आपके पापा ने या मम्मी ने नहीं निकाला रहेगा, जो जॉब पे है लेकिन नहीं निकाला, उनको सजेस्ट करो कि पीपीएफ निकाल कर रखो। आई थिंक टिल द रिटायरमेंट अगर उनको 15 या 20 साल बाकी है तो वो लोग उसका एडवांटेज अच्छा ले सकते हैं, बिकॉज पीएफ तो ऑलरेडी उनके सैलरी से कट होता ही है। लेकिन इसके साइड बाय साइड ये भी निकाल के रखो, बिकॉज पीपीएफ का भी आप जो रहेगा ना पैसा डिपॉजिट करते हो, वो भी आप लोग इनकम टैक्स के लिए यूज कर सकते हैं। सेम जैसे एलआईसी में अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, एलआईसी पॉलिसी खरीदा हुआ है, तो एवरी ईयर में आप एलआईसी के लिए कितना पैसा खर्च करते हो, तो वो भी आप पीपीएफ में सॉरी इनकम टैक्स में दिखा सकते हो। दूसरा और रहता है कुछ पोस्टल स्कीम का कुछ रहता है। कार होम लोन आप लोग दिखा सकते हो, होम लोन के अगेंस्ट जितना भी आपका टोटल ईयरली जितना खर्चा होता है वो भी इनकम टैक्स आपको मतलब उसके अंदर हेल्प करता है। लेकिन कार लोन को नहीं लिया जाता है, कार लोन को, बाइक लोन को इसमें इनकम टैक्स में नहीं लिया जाता है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ अ टैक्स बेनिफिट आल्सो यू कैन गेट व्हेन यू आर परचेसिंग द लाइफ इंश्योरेंस। ओके, देन हाँ,
तो लाइफ इंश्योरेंस मतलब भले जैसे कि मेरे इनकम के बारे में रहेगा, तो वहां पे मेरा ही पॉलिसी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, मैं मेरे हस्बैंड का पॉलिसी दिखा सकती हूँ, मेरे बच्चे का पॉलिसी दिखा सकती हूँ, ठीक है, वैसा मैं इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं। नेक्स्ट ये प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, पॉलिसी होल्डर्स कैन सीक लोन अगेंस्ट द पॉलिसी, a policy of life insurance can be assigned to the life insurance company, a bank or any other financial institution as a security for a loan if immediate liquid cash is needed. Life insurance thus act as an emergency fund also. ठीक है, provides liquidity, liquidity का मीनिंग क्या होता है पहले ये बताओ मुझे, what do you mean by the liquidity? फाइनेंशियल टर्म में लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है? यस एनीवन, इवन फ्रॉम द ऑनलाइन क्लास, लिक्विड बोलते हैं ना, लिक्विड कैश। हाँ कैश, यस वेरी गुड, मतलब जो भी पैसे है उसको कैश में इजीली कन्वर्ट करना आना चाहिए, so that we can see the liquidity. So here even this life insurance is also providing you the liquidity. ठीक है, वो भी आपको कैश में पैसा देता है, कैश में पैसा देता है इन द सेंस कि जैसे पॉलिसी बंद करना है तो आपको वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ऐसे नहीं कि वो कुछ अलग जैसे कि कुछ असेट में लाके वो आपको पैसा देने वाले, वैसा नहीं रहेगा, दे विल गो टू ट्रांसफर दैट मनी इनटू योर अकाउंट, तो आपको इजीली उसको यूज कर सकते हो, therefore we are saying it's a liquidity. Then the collateral security, collateral मतलब क्या रहता है, what do you mean by the collateral? कोलैट करना मतलब, हाँ हाँ जोड़ना जोड़ना, वेरी गुड, ठीक है, तो देखो इसको कोलैटरल सिक्योरिटी क्यों कहा गया है, बिकॉज इसके साथ में आप जैसे, ठीक है, विल सी दैट, विल रीड फर्स्ट हियर, सी अ पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर अ हाउसिंग लोन in case of unfortunate death of the policy owner, the amount available under the life insurance policy is adjusted towards the outstanding loan and interest, and the house is released to the बेनिफिशियरी विदाउट एनकम्बेंस, ठीक है, जैसे कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि तुम लोगों ने लोन भले ही वहां पे हाउसिंग का निकाला हुआ, ठीक है, लेकिन अगर जैसे मैंने आपको कहा कि हाउसिंग लोन के साथ में आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता ही है, बट मतलब हर एक जो भी लोन प्रोवाइड करता है हाउसिंग लोन, दे ऑल विल गोइंग टू गिव द इंश्योरेंस, लेकिन उसके अंदर भी कोई कोई बैंक बहुत कंपलसरी करती है कि आपको करना ही पड़ेगा, आपको लाइफ इंश्योरेंस मतलब होम इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस निकालना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ लोग सजेशन देते हैं बट इतना मैंडेटरी नहीं करते हैं, तो जो लोग मैंडेटरी करते हैं तो साइड बाय साइड दे आर गिविंग यू द टू सिक्योरिटी ऑल टुगेदर, जैसे कि कोलैटरल सिक्योरिटी बोला जॉइंट सिक्योरिटी, एक तो आपका जैसे उसने कल ही तूने क्वेश्चन किया था कि हाउसिंग लोन अगर रिपे नहीं होता है तो अगर बीच में कुछ हो जाएगा तो वो हाउस हम लोग को मिलेगा या बैंक रख देगा, गेटिंग में ना, तो ऐसे नहीं रहता है कि हाउसिंग लोन अगर मैंने लिया है उसी के थ्रू मैंने इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, तो क्या होगा अगर मेरा कुछ हो जाता है तो जो भी मेरा पैसा रहेगा मेरे लाइफ का, हाँ वो बैंक पूरा भरेगा, जिसपे वो पॉलिसी दिया हुआ है वो पूरा वो पैसा भरेगा, और जो जिसका डेथ हुआ है उसके फैमिली को घर रिलीज करके देगा, ओके, so this is what the collateral security we can say. Then the transfer of property contained in a life insurance policy does not attract any stamp duty like other property. It can be done by assignment under Section 38 of Insurance Act 1938, either by an endorsement on the back of the policy document or a stamp paper. ठीक है, so यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंटेन इन लाइफ इंश्योरेंस, जैसे कि प्रॉपर्टी जैसे हाउसिंग लोन तूने लिया है वो तेरे नाम पे हाउसिंग लोन, ठीक है, लेकिन तेरे बाद में तेरे वाइफ को वो जा रहा है, तो वहां पे ऐसे नहीं कि वो लोग लिटरली ऐसा लिख के देंगे वगैरह या कोई मतलब स्टैम्प पेपर बना के देंगे, बोलते हैं ना हम लोग, ये जो भी काम रहता है ट्रांसफर करने का वो बेसिकली काम जनरली क्या होता है कि हम लोग लीगली करते हैं, मतलब किसी भी लॉयर के थ्रू करते हैं, लेकिन एक बार इंश्योरेंस ले लिया है और इन बिटवीन किसी का डेथ हुआ है तो उसका नॉमिनी है वो, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो नॉमिनी के पास वो राइट चला जाता है, okay, this is what the transfer. Next, easy settlement of claim. Settlement of claim under life insurance policy is very simple. In case of a death claim, the nominee receives the policy money. In case of a survival of the policyholder, the maturity claim is paid to him. Easy settlement of claim, अगर डेथ होता है तो उसके नॉमिनी को मिलेगा, अगर तुम हो और तुम्हारा मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो गया पॉलिसी का तो तुम्हें वो पैसा मिल जाएगा, so that way easily we can claim, वहां पे कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं वो लोग क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट ईयर ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस,
ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, और ये बहुत सारे कंपनीज भी लेते हैं। देखो, इवन इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी कैन बेनिफिट थ्रू ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम स्पेशली डिजाइन फॉर दैट पर्पस एंड समटाइम्स सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो उन्होंने गवर्नमेंट का बात किया है, बट आई विल टेल यू कि अगर जैसे मैंने कहा ना, आप किसी भी बैंक में जाते हो या किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वो लोग आपको इंश्योरेंस बना के देते हैं आपका वाला, ठीक है। लेकिन एक बार आप वो कंपनी से चले गए तो आपका वो इंश्योरेंस निकल जाता है। तो वो क्या रहता है, उनको कैसे ही प्रॉफिटेबल रहता है कि इतने लोगों का इंश्योरेंस करवा के देना, तो वो क्या करते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस करते हैं हमेशा, ठीक है। तो ग्रुप इंश्योरेंस में क्या मिलता है उनको, सब्सिडाइज रेट में वो अवेलेबल हो जाता है इतने सारे लोगों का एक साथ कर रहे करके। दिस वे द इवन इंश्योरेंस कैन बी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस also. Then the investment, yes, we all know it's a good investment when we are investing the money into the life insurance policy. And the last one here, knowledge of expertise. Apart from safety and the liquidity, one of the important criteria for investment of fund is management of fund. A life insurance company will have the necessary experience and the expertise in the field, and the policy holders get the benefit of the same entirely free. देखो, अभी यहाँ पे क्या होता है, नॉलेज ऑफ एक्सपर्टीज मतलब क्या, कि जैसे बैंक में तुम लोग पैसा डिपॉजिट रखते हो, तो बैंक में पैसा क्या होता है कि बैंक वैसे ही पैसा रखता है क्या, नहीं, वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, isn't it? और आप लोगों ने देखा रहेगा कि जैसे बैंक, बहुत सारे बैंक बंद होते हैं, तो इसका मेन रीजन क्या रहेगा कि वो लोग इन्वेस्टमेंट जहाँ पे करते हैं ना, वो टोटली रॉन्ग रहेगा, वो टोटली लॉस में आता है करके वो लोग का बैंक बंद हो जाएगा। हाँ, यहाँ वैसे वो लोग मतलब एक ही चंद को, जैसे अगर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस, ठीक है। जैसे रिलायंस कंपनी को ही उन्होंने पैसा बहुत सारा वहां पे इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं, ये कंपनी प्रॉफिट लेगा तो हमें भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर वो कंपनी लॉस में चला गया तो ये बैंक भी टोटली लॉस में चला जाता है। ओके, सो लाइफ इंश्योरेंस का भी वैसे रहता है। लाइफ इंश्योरेंस भी क्या करता है कि अगर हम लोग जो पैसा, जो प्रीमियम भरते रहते हैं, वो भी वो इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, ठीक है। और ऐसा रहता है कि उनका इन्वेस्टमेंट के थ्रू उनको जितना प्रॉफिट मिलता है ना, उसके रेट के ऊपर जो आपको एडिशनल पैसा मिलता है, वो अलाउंस मिलता है, जो एडिशनल अलाउंस, वो उसके अंदर आता है। तो जितना प्रॉफिट रहेगा उतना उनको पैसा मिलता है। तो नॉलेज ऑफ एक्सपर्टीज मतलब एक्सपर्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो भी बहुत ग्रेट रहेंगे। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस अभी तक कभी भी लॉस में नहीं रहा है, जितना मैंने सुना। इवन ये कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों का, जैसे बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस भी निकाला हुआ था, तो कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने उसको क्लेम भी किया, तो वह तभी भी LIC का जो शेयर था वो कम नहीं हुआ था, उनका वैल्यू कम नहीं हुआ था। Okay, so this is what the advantage of life insurance we have seen. So that's it for today. Less than 1 minute. Ekta, please take the screenshot of attendance. हाँ, लिया है अटेंडेंस? अच्छा, नेट चला गया तेरा है? दे, मुझे देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये लोग ने नहीं कहा है देने के लिए, मैं तो दे सकती हूँ। क्या नितिन का भी नहीं चल रहा है? देना चाहिए एक्चुअली, लेट्स सी। हाँ वो तो है।